कॉलेज पे, तो वही सब कर रहा हूँ। अभी कॉलेज में हो क्या? हाँ सर, अभी थर्ड ईयर में हूँ। कहाँ पे? वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बर्धमान। ओके, वेस्ट बंगाल वर्ड समझ गया। अच्छा, तो अभी थर्ड ईयर में हो ना? यस सर। नाइस। सो आपका स्ट्रीम क्या है? कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस है क्या? मेरा स्ट्रीम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी। हाँ, इसी है, बट यू वांट टू डू कोडिंग, करेक्ट? यस सर। Ah, makes sense. Understood. Okay, so you're a college student, third year. You know basic of HTML, CSS, JavaScript, and React as well, correct? यस सर। और बैकएंड से रिलेटेड यू डोंट नो एनीथिंग ऐसा? बैकएंड में रिएक्ट के बाद नेक्स्ट जेएस करना चाहता हूँ। नेस्ट? नेक्स्ट जेएस। NEXT या NEST? नेक्स्ट या नेस्ट? NEXT, नेक्स्ट जेएस, NEXT, जो रिएक्ट Nest.js. की फ्रेमवर्क है। Okay. So that's not backend framework basically, but yeah, you can create फुल backend, स्टैक। but उसके लिए भी you have to know Node.js, which is a backend thing to do. With something we used to create backend using JavaScript. Okay, Next.js. ठीक है। Any specific reason क्यों करना है वो? अभी मार्केट में हाइप चल रहा है नेक्स्ट जेएस का, सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। Understood. Makes sense. Okay. So yeah, Abhishek, hi. This is Chinmay. How are you? I'm fine, sir. Yeah. Can I know about you? आप क्या करते हो? Yes, कैसे so करते हो? I've been graduated from the 2024. Okay. Now I'm working as a software engineer in the institute, and right now I've been working in the front end. Like in my in my college time, I have done front end in the React, HTML, CSS, and from the last couple of months, I've been also working in the I have also learned TypeScript, Tailwind, and if I talk about backend, then I have done in Node.js. So most of the projects I have done in the Monstack. Uh, except this, now I'm working in a company which is American consulting company. For example, like they make data solutions, data AIs, and but the thing is, they have hired me as a software engineer now, and now they are saying that I should work in a Python and PySpark for data engineering roles, right? Like for the data engineering roles and data engineering for whatever there is, because they have their internal projects also. In this, they have been working as a like they have their own payment methods, they have their own AI integrations. So this they just want us to work in that particular thing. So I just want to know about the how it can help in the future. For example, if I talk about, I'm also working as a backend API. If I talk about backend APIs, I've done that particular projects also. Do you know about Harkirat? Yeah. So I have done cohort 3.0. I'm a member of cohort 3.0 also, no? And I have also done lead code at a very extent, like 1600 to 700 question problems, solve problems. बट द थिंग इज कि मेरे को हमेशा से ये था कि जब मैंने 15 या 1600 क्वेश्चन सोल्व करे, मेरा दिमाग एक तरफ ये था कि लाइक किसी एमएनसी में जाना है। तब मेरे पास ये नहीं था कि हाँ भाई फ्रंट एंड करना बैक एंड, बिकॉज एट दैट टाइम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब तक रिसेशन नहीं पड़ा था, तब तक मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज वर गोइंग लाइक हाँ डीएस से पूछ लो हो जाएगा, लाइक थोड़ा बहुत डेवलपमेंट अच्छा वाला प्रोजेक्ट करे तो हो जाएगा। एंड मेरा हमेशा से लाइक इतना पैशन था कि करना है तो लाइक फॉरेन एमएनसी स्टार्टअप ही ज्वाइन करना है, भले ही फिर मेरे को बाहर क्यों ना जाना। लाइक मेरे को तो ये है ही है कि मतलब मेन टर्म गोल तो मेरा ये है कि बाहर जाना ही है, बिकॉज इंडियन स्टार्टअप या इंडियन कल्चर की मैं बात करूँ तो मेरे को इतने ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं करती है वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा जितनी मतलब बाहर की चीज़ें करती हैं। सो इट वाज माई फिर मैंने आपको देखा कि लाइक आप भी यार जापान या टोक्यो में काम कर रहे हो ना, तो मेरे को ऐसा हो कि मे बी यू कैन गिव मी गाइडेंस अबाउट दैट आल्सो। Guidance on which topic particularly? लाइक हाउ टू लाइक मतलब मेरे पास इंटरव्यूज ही नहीं आ रहे, मे बी मेरे पास प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे नहीं है, इस वजह से हो रहा है। तो मे बी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इंटरव्यू कॉल्स स्पेशली, क्योंकि मैंने बड़ा ही ज्यादा ट्राई करा है, 1600 क्वेश्चन सोल्व करा, बट द थिंग इज मैंने अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है ऑफ कैंपस। सोल्व प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने करे, वेब 3.0 को मैंने पकड़ा हुआ था, वेब फ्रंट एंड मैंने पकड़ा हुआ था, बैक एंड मैंने पकड़ा हुआ था। आई मेड वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, आई हैव माय ओन पोर्टफोलियो राइट नाउ, एंड आई हैव आल्सो डन काफी अच्छा गेटअप है मेरा प्रोजेक्ट से, एंड स्टिल मेरे पास कोई भी एक इंटरव्यू कॉल तक नहीं आती थी।
So ऐसे just क्यों more हो to रहा है? आप यू सेड दैट आपने कोई कोहॉर्ट 3 पॉइंट व्हाटएवर कोर्स yes ज्वाइन sir, किया तो वहाँ yes से sir. कोई हेल्प नहीं मिली? सर कोहोर्ट 3.0 में द थिंग इज काफी ज्यादा भी मतलब उन्होंने सुपर 30 खोल दिया वो भी हर की भैया ने। तो अभी सुपर 30 के अंदर क्या होता है, दे हैव एन ऑन बोर्डिंग बैच कि मतलब वो ऑफलाइन आकर उनको पढ़ाते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ उनका फोकस अभी उन पे ही होता है। हमको वो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, नो डाउट अच्छा पढ़ाते हैं। एंड दे बीन वर्किंग लाइक मैंने अभी मॉन्स्टैक कर लिया, अभी उसके बाद नेक्स्ट जीएस चला, पोस्टग्रेस पढ़ लिया मैंने, जैसे डेटाबेस में पोस्टग्रेस पढ़ा है। तो अभी उसके बाद वो नेक्स्ट जीएस पढ़ाया उन्होंने। नेक्स्ट जीएस के बाद उन्होंने अभी डबल इंटीग्रेशन कराई है, लाइक डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बता रहे हैं उसके अंदर। बट अभी मैं थोड़ा छोड़ दिया हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पे भी काम करना है, क्योंकि यहाँ पे भी पाइथन पाइस्पार्क करनी पड़ रही है साथ साथ में। एंड देयर बीन आल्सो इन प्रेशर सिचुएशन इस यहाँ पे भी कि आपको करना ही करना है, कि 2 हफ्तों के अंदर करना ही करना है, अदरवाइज इट वोंट बी गुड फॉर यू आल्सो बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन। सो मतलब मैंने तो यही चीज सीखी है सबसे इम्पोर्टेंट, कि मतलब रिएक्ट के मैंने अच्छे खासे हुक्स वगैरह के टॉपिक सीखे हैं वहाँ पे। एंड या मतलब कैन यू टेल मी एनी ऑफ योर लाइक बेस्ट प्रोजेक्ट जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा बेस्ट प्रोजेक्ट है? सर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे कोई वो नहीं सोचा, लाइक आइडियाज होते हैं ना, जैसे कि मतलब बंदा एक आइडिया सोचता है कि हाँ काफी अच्छा आइडिया, मैंने उस हिसाब से नहीं सोचा। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स मेरे इस पे थे कि लर्निंग बेस पे थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोर्स सेलिंग ऐप था, उस कोर्स सेलिंग ऐप पे मैंने सब कुछ इंटीग्रेट करा जो भी मेरे को अब तक आता है, चाहे वो रिएक्ट हो चाहे वो टाइपस्क्रिप्ट हो। ठीक है, फिर मैंने सोचा उसके अंदर ग्राफ क्यूएल भी ऐड करूंगा, बट मेरे पास उतना टाइम था नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पे आ गया मैं, ग्राफ क्यूएल ऐड करना था। लाइक उसके अंदर मैंने सारी मतलब अपने इंटीग्रेशंस लगा दी हुई थी, जो भी मैं पढ़ता था सब कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा देता हूँ। एंड इसके अलावा मैंने सोलाना का ब्लॉकचेन पे काम किया हुआ है। सोलाना का मतलब जो ये नहीं होते जैसे वेब एप्स वगैरह होते हैं, लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जो इनकी, जैसे बैकपैक हो गया, ठीक है, जैसे वॉलेट्स होते हैं, सोलाना वॉलेट्स में मैंने काम करा हुआ है, इथेरियम में मैंने काम करा हुआ है। एंड नाउ आई वाज थिंकिंग कि रस्ट पे काम करूं, बट तब तक पाइथन आ गया, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन। अब रस्ट पकड़ूं, पाइथन भी करना है, वेब 3.0 की सोचता हूँ, और यहाँ पे भी सोच रहा हूँ कि मतलब टाइप स्क्रिप्ट पकड़ के रखूं, मतलब वही है। अभिषेक, मेरे को तुम्हारी बात सुन के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी ये लगा हुआ, लाइक द बेस्ट गाइडेंस आई कैन गिव यू, ये कि यू एटलीस्ट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड एक टेक्नोलॉजी फॉर द टाइम बीइंग कि ये Yes, sir. मुझे पर्टिकुलरली करनी है, ये मुझे पर्टिकुलरली करनी है और ये मुझे अच्छे से करनी है। एंड एटलीस्ट कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे इसमें बनाने हैं, सो आई कैन लर्न एडवांस कॉन्सेप्ट, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है आपके काम में, आपका वे ऑफ लर्निंग में। नेक्स्ट जेएस, टाइपस्क्रिप्ट, सोलाना, वेब3, पाइथन, चलो तो पाइथन तो देखिए जॉब का पार्ट तो करना ही पड़ेगा, देन रस्ट। सो कोई मैच नहीं है सब में, या कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। अगर ये सब सीख भी लोगे तो जॉब में दिक्कत उतनी ही आएगी। लाइक बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करने से जॉब नहीं मिलती, बट यू शुड बी गुड एट समथिंग। पहली बात तो वो चीज़ बहुत डिमांड में होनी चाहिए, नॉट इन ट्रेंड। लाइक ट्रेंडिंग में होना और डिमांड में होना दोनों में फ़र्क है। ट्रेंडिंग Yes, में मन स्टैक हो सकता है, क्योंकि ठीक है अगर एक साथ 1 लाख लोगों ने सीख लिया तो वो हो सकता है ट्रेंड में, पर डिमांड में होने में फ़र्क है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या डिमांड में है, नॉट इन ट्रेंड बट डिमांड, क्योंकि जॉब इज समथिंग सीरियस। और जॉब लेने के लिए आपका रिज्यूमे या आपकी स्किल्स जो चीज़ डिमांड में है उस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि जो कि ट्रेंड में है उस पर। लाइक जो सब कर रहे हैं वो करने से जॉब मिल भी सकती है और नहीं मिलती मोस्ट ऑफ टाइम। सेकंड, रस्ट आपको क्यों सीखना है, आई जस्ट डोंट नो, क्योंकि रस्ट के लिए जॉब्स नहीं हैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि रस्ट के लिए इतनी सारी जॉब है कि आपने सीख रहा जॉब मिल जाएगी, क्योंकि डिमांड भी होनी चाहिए ना। ठीक है, आपने सीख भी लिया और डिमांड ही नहीं है मे बी इंडिया में या किसी स्पेसिफिक एरिया में। जैसे कि मैं बात करूँ अगर जापान की, तो जापान में अगर मैं रस्ट सीख के जॉब ढूंढता तो नहीं मिलती मेरे को, चाहिए नहीं किसी को फ़िलहाल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यू शुड डिसाइड फर्स्ट कि एक टेक्नोलॉजी एटलीस्ट, चाहे वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड हो या फिर वो ट्रेडिशनल जावा बेस्ड हो या फिर वो PHP पे कुछ फ्रेमवर्क्स है उन पे बेस्ड हो, लैरावेल बेस्ड हो, तो एटलीस्ट यू शुड डिसाइड। उसके बाद यू शुड बी लुकिंग फॉर अ जॉब। सेकंड, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, उसका रीज़न मेरे को ये लगता है कि उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यूज़ लेने के लिए द फर्स्ट स्टेप यू डू इट दैट यू सेंड योर रेज्यूमे। ठीक है, उसको देख के सामने वाला पर्सन ये सोचता है कि आपको इंटरव्यू करना है या नहीं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मे बी आपके रेज्यूमे है। आई मीन आई डोंट नो अबाउट योर रेज्यूमे, बट उसमें है प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली। सेकंड,
द वे यू हैव क्रिएटेड योर रेज्यूमे उसमें हो सकता है प्रॉब्लम. सेकंड, एक कवर लेटर होता है, लाइक जैसे कि अगर आपको जापान में जॉब ढूंढनी है ना, तो आपको 3 डॉक्यूमेंट इन हैंड चाहिए होते हैं. एक होता है आपका इंग्लिश रेज्यूमे डिटेल के अंदर, और जो लाइक वेस्टर्न लाइक यूएस में या इंडिया में जो कॉन्सेप्ट चलता है 1 पेज रेज्यूमे का, वो इधर नहीं चलता जापान में. जापान में एटलीस्ट ठीक है 2 पेज आर ओके, अगर आपके 2 पेजेस हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं. तो एक इंग्लिश चाहिए होता है, एक जापानीज चाहिए होता है, और फिर एक चाहिए होता है कवर लेटर. तो ऐसे थोड़ा डिटेल ये इसलिए चाहिए होता है कि सामने वाला पर्सन कैन लुक इनटू योर वर्क इन मोर डिटेल. ठीक है, तो आपका रेज्यूमे लेटर इफ़ यू कैन सेंड मी, मे बी आई कैन रिव्यू इट, क्योंकि उसको लिटरली ठीक होने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर आपको एक भी इंटरव्यू नहीं आ रहा है बट आपको काम आता है, तो दैट्स नॉट फेयर. ठीक है, ऐसा ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं होगा. एज लॉन्ग एज एज सुन एज यू विल बी रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग योर रेज्यूमे, आई एम श्योर इंटरव्यूज़ तो मिलने ही चाहिए. बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपने क्या बना रखा है. क्योंकि अगर 1 लाख लोगों ने सेम चीज़ बना रखी है और आपने भी सेम बनाया है, तो इट डिफ़िकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने रिसेंट जॉब चेंज की है अभी, आई थिंक लाइक अक्टूबर में मैंने जॉब चेंज की है. सो द वे आई अप्लाइड फॉर जॉब्स, मेरे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे. लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, आई क्रिएटेड समथिंग अडेप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग सर्वर इन गोलैंग. मैं पहले गोलैंग में काम करता था, अभी मैं जावा और कॉटलिन में करता हूँ. सो आई क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट कि हाउ कैन आई स्ट्रीम समथिंग विद अडेप्टिव बिट रेट. ठीक है, लाइव लाइक अगर मैंने OBS चलाया, फिर OBS से मैं कुछ RTMP सर्वर पे स्ट्रीम कर रहा हूँ, एंड देन वो स्ट्रीमिंग मैं एक लोकल होस्ट का URL है लाइक 8080, वहाँ पे इफ़ आई ट्राई टू ओपन दैट पेज, वहाँ पे एक नॉर्मल सा वीडियो प्लेयर होगा एंड आई कैन स्ट्रीम थिंग्स. सो अगर मैं उसको डिप्लॉय करूँगा तो आई कैन स्ट्रीम लाइव. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, इम्पॉर्टेंट था फॉर मी. देन आई क्रिएटेड समथिंग रिसेंटली, एक टाइगर बीटल नाम का ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है, वो जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ था, उसने फंडिंग रेज की थी. तो मेरे को वो डेटाबेस बड़ा अच्छा लगा था, तो उस पे बेस्ड आई यूज दैट डेटाबेस एंड आई क्रिएटेड समथिंग इन गोलैंग which was able to create 5 million DB, not DB record but transactions in just 5 seconds. वही मैंने गो में किया था. तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक्चुअल नीड होती है व्हेन यू वर्क फॉर अ बिग कंपनी और आपको MNC के लिए काम करना है. तो MNC में लाइक व्हेन यू वर्क फॉर MNC, लाइक आई वर्क फॉर MNC, सो आई नो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उतनी आसानी और उतनी लो लेवल पे नहीं होती जितना यू लर्न इन मे बी लाइक सम कोर्सेज और लाइक बाय योरसेल्फ. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स सच में ज़रूरी हैं. अगर आपके रेज्यूमे में आई डोंट अगेन क्या लिखा हुआ है, बट अगर कोर्स सेलिंग ऐप लिखा हुआ है या कोई नॉर्मल ऐप लिखा हुआ है, तो दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन नाउ डेज, वेरी कॉमन. ठीक है, वो बहुत कॉमन है. वो मतलब वो इट कैन नॉट हेल्प यू टू स्टैंड आउट और इट इज़ नॉट एडिंग एनी वेटेज टू योर रेज्यूमे. गो अहेड बोलो. सर ये मतलब मेरे को भी काफी सारे बंदों ने बोला कि लाइक तुम्हारे प्रोजेक्ट्स काफी सिंपल से हैं, बट द थिंग इज मैं मर्ज स्टैक के अंदर और कुछ कर नहीं पा रहा. तो मैं वही सोच रहा था कि किसी और डोमेन में थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ अपने आप को. तो मेरे को वही था मेन कि मैं कौन सा डोमेन पकड़ूंगी, क्योंकि मैं इसमें काफी कंफ्यूज रहता हूँ कि लाइक मर्ज स्टैक के अंदर काफी ज्यादा वास्ट में इस वक्त बंदा लाइक कर ही रहा है. लाइक रिएक्ट हर एक दूसरे बंदे को आती है, हर दूसरे बंदे को. जब मार्केट में इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर मार्केट में हर जगह लाइक सिर्फ आलू बिक रहे हैं ना, ठीक है, सिर्फ आलू बिक रहे हैं, हर जगह आलू बिक रहे हैं, हर कोई पर्सन बेच रहा है आलू. अब अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी बेच रहा है तो भी नहीं, और नहीं तो भी वो रेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उतनी नहीं है. या फिर सप्लाई से डिमांड उतनी नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सप्लाई. हर किसी को मन स्टैक आता है, हर किसी को रिएक्ट आता है, हर किसी को HTML आता है. तो अब सिर्फ आप नहीं हो, 10 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को आता है. तो ठीक है, मार्केट में डिमांड 10,000 की और सप्लाई 1 करोड़ की है, तो अब कितना भी अच्छा आपको आए डजेंट मैटर. हो सकता है समटाइम्स कि आपसे कम किसी को कुछ काम आता है, वो उसकी हायरिंग होगी क्योंकि उसने पहले अप्लाई किया और आपने नहीं किया. तो ये तब होता है जब सप्लाई बहुत ज़्यादा और डिमांड कम हो या लिमिटेड हो. सो बेसिकली यू शुड गो फॉर अ फील्ड जहाँ पे डिमांड भी बहुत है और सप्लाई लिटरली कम है. लाइक मुझे नहीं पता क्यों, बट लोगों को लगता है कि जावा या सर्वर साइड Kotlin is not a good thing to learn for backend, but it is still one of the most widely used
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितनी भी नई कंपनीज होंगी छोटी, उनमें मे भी हो सकता है कि नोट जेएस या नहीं यूज़ हो रहा हो। तो अभी भी कोई भी अगर एंटरप्राइज लेवल पे काम शुरू होता है तो वो जावा पे होता है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर डॉट नेट Yes, पे sir. होता है, या फिर जो कंपनीज पहले की चली आ रही हैं अभी तक उन सब में everything is built on Java, so they cannot change it quickly. So Max, what they are doing, they are switching from Java to Kotlin, because Kotlin is very enhanced version of Java. I'm talking about server side Kotlin. So आपको tech stack change ही करना है तो मैं अपने डोमेन एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ कि यू कैन गो फॉर लाइक यू शुड गो फॉर गोलैंग, Yes, or you sir. should go for Java or server side Kotlin, because server side Sir, Kotlin is being used yes, sir. extremely in financial tech companies. Go ahead, बोलो. Yes. सो मैंने कोटलिन और जावा पकड़ी थी, बट वही सीन हुआ कि मैंने ये भी छोड़ दी थी, लाइक Why? पता नहीं, मतलब आई डोंट नो, मैंने कोटलिन पकड़ी थी, कोटलिन में मैंने एप्स भी बनाए थे एंड काफी अच्छा, लाइक ऐसे एक्सएमएल शीट्स वगैरह जो होती थी, मतलब वो बना लेता था एक टाइम पे। एंड आई डोंट नो, मतलब मैंने वो देखा कि लाइक साइट्स वगैरह होती थी, मतलब मेरे को कुछ लाइक इतना अच्छा इसमें ना वो नहीं दिखा, लाइक कोई अच्छी गाइडेंस नहीं दिखी। एंड हर एक बंदे से जिससे वो कोई क्वेश्चन पूछता था बोलते नहीं भाई मेरे को तो वेब डी आती है, मेरे को ये आता है। मैंने लाइक इतने एक मैं फायर बेस के अंदर फंसा था, लाइक फायर बेस का अभी तक मेरे पास वो क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला किसी से। मेरे मतलब टियर 3 कॉलेज से हूँ एंड द थिंग इज कि वहाँ पे तो आपको पता है लाइक मैं भी मतलब T3 से हूँ. हाँ, मतलब टीचर्स वगैरह को इतना नहीं होता लाइक डेवलपमेंट का। तो अपने जो कोलीग्स वगैरह से पूछता था, लाइक क्लासमेट से पूछता था, उनको नहीं पता होता था उन चीज़ों का। तो एट द एंड मेरे को ये हो गया रियलाइज कि कोई बंदा बताने वाला ही नहीं है, लाइक इसमें इतनी कम गाइडेंस है। उनके सेकंड या थर्ड ईयर में ऐसा इंटरनेट एरा भी नहीं आया था कि लाइक हर एक चीज का आपको वो यूट्यूब में मिल ही जाता था। लाइक आफ्टर सेकंड ईयर जैसे ये कोविड खत्म हुआ उसके बाद लाइक एकदम से कोर्सेज आ गए हैं, हकीरत भैया का कोर्सेज आ गया, लाइक और भी ज्यादा काफी ज्यादा लाइक वैसे कोर्सेज एकदम से फ्लो में आए हैं, पहले उससे नहीं होता था। और फिर मेरे को ऐसा हो, फिर मैंने उसके बाद मर्न स्टैक को पकड़ा, क्योंकि वह तब बोलते थे मर्न स्टैक काफी अच्छा है, ये पकड़ लो वो पकड़ लो। तो मैंने जॉब मिल आउट ऑफ जाती है, मन स्टैक से कह सकते हैं जल्दी जॉब मिल जाती है, ठीक है आपको मिल जाएगा काम। तो अगर आपको डिपेंड्स, आपको जॉब चाहिए या आपको अच्छी जॉब चाहिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों में आपको जॉब 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 ही मिलेगी, बट सस्टेनेबिलिटी और लाइक रिकरिंग ग्रोथ का बहुत फर्क है। आपको सिर्फ जॉब चाहिए तो मन स्टैक्स में, आपको अच्छी अच्छी जॉब चाहिए देन यू हैव टू लर्न समथिंग अच्छा और समथिंग रॉबस्ट और सॉलिड, which is like maybe Java or Kotlin or Golang recently. गोलैंग का तो मैं भी सोच रहा था करूंगा, बट रस्ट या गोलैंग में काफी कंफ्यूज हो रहा था, बट कंफ्यूज मोस्ट ऑफ होने द की बंदों ने जरूरत मेरे नहीं, को जस्ट गो गोलैंग। विथ। जब मैंने स्टार्ट किया गोलैंग आई वाज नॉट कंफ्यूज, तो मुझे पता था कि गोलैंग करना है। उसका रीजन है कि रस्ट का लर्निंग का बहुत स्टीप है, डिमांड कम है, इतना चाहिए, जॉब मिलेगी नहीं। खुद के इंटरेस्ट के लिए सीखना बहुत अलग बात है, जॉब के लिए सीखना बहुत अलग बात है। तो गोलैंग में मैं कर सकता हूँ लाइक अभी भी, क्योंकि मैं लाइक मैं पाइथन के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दूं कि पाइथन और पाइस्पार्क करवा रहे हैं, उस पे ज्यादा ध्यान दूं या यार डिपेंड्स लाइक व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू लाइक टू डू। मेरे केस में ऐसा था कि मुझे हेल्थ टेक या मुझे फिनटेक में काम करना अच्छा, तो मैं चाहता था काम करना, सो इवेंचुअली मैं कर भी रहा हूँ। सो इट डिपेंड्स कि व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि सब चीज़ की शुरुआत वहाँ से होती है कि व्हाट यू वांट टू डू। उसी के बेस पे आप अपने सारे टूल्स तैयार करोगे ना, किस तरह का यस फाइट आप करने जा रहे हो, उसके बेस्ड यू चूज़ योर वेपन की मुझे ये चाहिए ये चाहिए चाहिए। तो डिपेंड आपको करना है, आपको हेल्थ टेक में जाना है, आपको फिनटेक में जाना है, आपको एड टेक में जाना है, आपको इन जनरल। वेल्थ मैनेजमेंट, और वेल्थ मैनेजमेंट में मेरा ज्यादा फोकस था, क्योंकि अभी जो हमारी कंपनीज के 4 या 5 वर्टिकल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वेल्थ मैनेजमेंट का भी इनका वर्टिकल है, हाईटेक का इनका है, टेलीकॉम का इनका है, एंड इनके अलावा लाइफ साइंस का इनका है, एग्रीकल्चर का इनका है। तो इनके 4 या 5 वर्टिकल्स है। तो मेरे को वैसे सबसे अच्छा तो अभी तक वेल्थ मैनेजमेंट लगा, जो बैंकिंग सेक्टर होता है, तो उसके हिसाब से। देखो अभी आपकी जो करंट जॉब है उसमें आपको काम करना है पाइथन में, करेक्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको करंट जॉब की ज़रूरत नहीं है और आप इसको इमीडिएटली क्विट कर सकते हो फॉर योर लर्निंग और इम्प्रूवमेंट, दैट इज डिफरेंट केस। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो अपनी जॉब को तो डेफिनेटली करते रहो विद पाइथन। उसके अलावा फॉर द नेक्स्ट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आई बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन सजेस्ट टू थिंग विच इज़ वेरी इंडस्ट्री लेवल और एंटरप्राइज लेवल। यू कैन लर्न फॉर गोलैंग या फिर जावा एंड सर्वर साइड कोटलिन, बोथ आर सेम, सो लाइक यू कैन गो विद जावा। स्टिल अगर कुछ भी ढंग का बड़ा अच्छा क्रिएट हो रहा है तो वो जावा पे होगा, कोई नोड जेएस पे नहीं करेगा, बिकॉज जावा प्रूवन है, लाइक इट इज लाइक वेल प्रूवन एंड वेल एस्टैब्लिश्ड टेक स्टैक, ठीक है। तो इधर गो विद जावा एंड कोटलिन और द गोलैंग।
सर गोलैंग के अंदर लाइक किस हिसाब से रोड मैप होगा, लाइक इस पे कौन कौन से एप्लीकेशंस का मेन ये होता है कि मतलब यार बन सकते हैं? गोलैंग इज वेरी गुड लैंग्वेज व्हेन यू वांट टू वर्क विद द गेम डेवलपमेंट ऑन द बैक एंड साइड, ठीक है. Alright. एंड देन लाइक ट्रेडिंग एप्लीकेशन जहाँ पे लाइक इसको अगर वन वर्ड में बोलूँ तो कोई भी ऐसा सेक्टर जहाँ पे आपको लो लेटेंसी पे काम करना होता है. लो लेटेंसी का मतलब होता है कि लाइक फास्ट होती है अपनी, नॉट एफिशिएंट बट फास्ट. बेसिकली अगर लाइक लाइक मे बी लाइक ठीक है Disney Hotstar. एक एमिटिंग सर्वर है जहाँ से हर सेकंड या हर मिली सेकंड कुछ डेटा एमिट हो रहा है. Okay. तो वो डेटा क्लाइंट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो लेटेंसी हाई है. तो लाइक ज़्यादा टाइम लग रहा है और कम टाइम लगा तो लो लेटेंसी. तो लो लेटेंसी सर्वर जावा में सॉरी गोलैंग में वी यूज इट ऑन द गेमिंग मल्टीप्लेयर गेम सर्वर्स, या फिर ट्रेडिंग फाइनेंशियल एप्लीकेशन, या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन, या फिर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स होती हैं उनमें. स्ट्रीमिंग एप्स में भी होता होगा। स्ट्रीमिंग सर्वर जो जो टीवी की एप्लीकेशन होती है, क्योंकि अभी लाइक यूजुअली जापान में 3 से 4 या 5 आई थिंक ऐसी एप्स हैं जो कि लाइक टीवी प्रोग्राम को स्ट्रीम्स करती हैं और समटाइम दे डू लाइव स्ट्रीमिंग. अच्छा तो अच्छा। लो लेटेंसी काम जहाँ भी करना है यू कैन यूज़ गोलैंग. और हाईली कॉन्करेंट और एफिशिएंट वेब सर्वर्स आपको लिखने हैं तो यू कैन यूज़ गोलैंग. ऑलराइट। अगर आपको ये सब जावा में हो सकता है, होता ही है, हम भी करते हैं. तो बट या गोलैंग इज लाइक थोड़ी सी लाइक मॉडर्न या ट्रेंड या फैशन या लाइक कह सकते हैं कि न्यू फैशन टाइप कूल। चीज़ है. हाँ जैसे कूल तो होता है इट्स कुछ। फाइन. या यू कैन गो विद द गोलैंग. सीखना इतना मुश्किल नहीं है, इट्स ईजी. शुरू में मैं सजेस्ट करूँगा कि जस्ट ट्राई टू क्रिएट gRPC server, HTTP server, then just try to create a microservice, then just try to ठीक है, HTTP server, gRPC server, then microservice. इन इसका जो चौथा आपका होना चाहिए प्रोजेक्ट, दैट इज नॉट अ न्यू प्रोजेक्ट बट टू स्केल दी सर्विसेज. अगर आपने HTTP Yes, server sir. बनाया जो नाउ जस्ट ट्राई टू स्केल इट ऑन योर हार्डवेयर. आपका जो भी हार्डवेयर है उसकी जितनी लिमिटेशंस हैं वहाँ तक ट्राई टू स्केल इट, like 1 million, 5 million, 10 million, whatever it is. Then do same with the gRPC, then do same with the microservice architecture. अगर ये तीनों चीज़ आपने स्केलेबिलिटी पे करी हैं, आई डोंट थिंक यू नीड एनी अदर प्रोजेक्ट, बिकॉज इसमें आपके क्लाउड ऑपरेशंस आ जाएंगे, इसमें आपकी एफिशिएंसी, आपकी कॉन्करेंसी, चैनल, लो लेटेंसी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. मैंने यही किया था. सो इट वर्क्स रियली वेल, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, फंडामेंटल्स बहुत कम है. तो फंडामेंटल सीखने प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं. तो आई थिंक स्केलेबिलिटी पे यू शुड फोकस सो मच, क्योंकि ये कोई पढ़ाता नहीं है और ये इस पर कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि आई थिंक इस पर कोई पूछता भी नहीं है. बट अगर आपके रेज्यूमे में ऐसा लिखा हुआ है कि यू कैन सर्व लाइक यू कैन हैंडल 5 million रिक्वेस्ट इन जस्ट 5 seconds, और यू कैन राइट 5 million DB रिकॉर्ड्स इन जस्ट 5 seconds, 4 seconds और इन 2 seconds, तो दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव थिंग. अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ तो मेरे को उस पर इंटरेस्ट आएगा, ना कि मुझे ई कॉमर्स या टू डू या कोर्स पे आएगा इंटरेस्ट. Exactly. ऑफ कोर्स नहीं आएगा, क्यों ही आएगा. या सो सर तो मेन थिंग इज कि जो गोलैंग वो अपनी बैकएंड पे काम करती है सर्वर साइड पे, राइट? ऑफ कोर्स. तो मेरे को वैसे भी ज्यादा इंटरेस्ट है, वैसे भी बैकएंड की तरफ है, लाइक स्केलेबिलिटी की तरफ है. तो Yeah. फ्रंट एंड पे तो वैसे मेरे को कम भी जाना है, तो लाइक ठीक है. तो मैं साथ साथ में अभी पाइथन करते रहूं, मतलब जैसे कंपनी वगैरह तो बोल रही है कि कर तो इसको, वो तो तो साथ में. जॉब है, वहाँ से पैसे आते हैं तो वो तो काम करना ही. तो उसके लिए जस्ट अपना पाइथन पे काम करो 8 घंटा 9 घंटा जो भी होता है. उसके अलावा if you really want to start a new tech, then go language side में you can like start from the start. ओके ओके. ठीक है. यस ओके. और किसी भी लैंग्वेज को जब भी स्टार्ट करते हो, उसके बेसिक सीखने के बाद, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, उसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ कभी भी, चाहे मैं जावा, चाहे रस्ट, चाहे पाइथन, व्हाटएवर इट इज, आई ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑथेंटिकेशन सिस्टम. और मेरे चैनल पे गोलैंग का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है भी फ्रॉम द स्टार्ट. और वो वीडियो है जो कि यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी, मतलब उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया तो यूट्यूब पे कहीं भी कुकीज़ और सेशन को यूज़ करके गोलैंग से ऑथ फ्लो नहीं था. ओके. सो माई वीडियो मोस्ट प्रोबेबली इज द फर्स्ट वीडियो, यू कैन वॉच इट जब सीखो. तो ऑथेंटिक सिस्टम किसी भी लैंग्वेज बनाते हो, उससे होता क्या है, आपको सिंपल, मीडियम और एडवांस सारे तरह के कॉन्सेप्ट सीखने मिलते हैं, प्लस CRUD ऑपरेशंस भी मिलता है, प्लस सेशन, प्लस कुकीज, प्लस लोकल स्टोरेज, प्लस टोकन, डिकोडिंग, एनकोडिंग, ये सब एक ही फ्लो में सीख जाते हो. सो ऑल सिस्टम पोस्टमैन चल पड़ती है इसके अंदर, लाइक पोस्टमैन से अपना एपीआई टेस्टिंग करनी हो तो पोस्टमैन से हो जाती है वो. doable, yeah. Huh? As long as you have an API address to expose, you can use it with
postman. ओके सर, Yeah. थैंक्स अ लॉट सर। बाकी कितने महीने तक मतलब ऐसा हो जाता है बंदा कि हाँ मतलब डिसेंट? कहाँ रात दिन काम अच्छे से सीखो मेहनत करो, 3 months आर मोर देन इनफ. मोर देन आफ्टर दैट आई कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स, राइट? डेफिनेटली मोर देन इनफ. अब जब 3 महीने में अगर आपने काम किया है साल भर का या 8 महीने का, तो व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, देन यू से कि आई वर्क लाइक आई एम वर्किंग फॉर लाइक ईयर, नॉट 3 months. क्योंकि एक पर्सन जो काम साल भर का वो आपने 3 महीने में किया है, तो इवेंचुअली काम तो एक साल का ही किया है ना. So you have then you will be having that 1 year of experience, not 3 months of experience. एग्जैक्टली। तो इसमें तो फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए क्या काफी टेक स्टैक होता होगा गोलैंग के लिए? फ्रीलांसिंग का मैंने कभी किया नहीं, बिकॉज मैं शुरू से फुल टाइम जॉब में आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस. क्योंकि फ्रीलांसिंग में यूजुअली आई डोंट नो कि लाइक कभी भी कोई भी एंटरप्राइज लेवल का काम आपको नहीं मिलेगा फ्रीलांसिंग में, दैट इज फिक्स. ठीक है, बहुत Yes, छोटी yes. कंपनीज या जस्ट बहुत छोटे स्टार्टअप्स का काम आपको मिलेगा, बिकॉज एंटरप्राइज लेवल का फ्रीलांसिंग में मेरे हिसाब से नहीं मिलता. तो वो काम इसलिए वो काम बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स द मर्न स्टैक एंड द जावास्क्रिप्ट थिंग, or like Alright. the hardcore web development, but not web services development. There's a different web development and web service development, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. क्योंकि मेरे को जैसे वाईसी बैक स्टार्टअप हो जाते हैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा फैसिनेट होता हूँ, या वाईसी बैक हो गए या यूके बेस्ड स्टार्टअप, यूएस उस केस बेस्ड, में तो then you उस केस में you have to differentiate yourself with your work. जो मैंने कहा है, अगर अपनी प्रोजेक्ट अच्छे से बनाएं then it will help you really well. लाइक क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये प्रोजेक्ट्स वगैरह आजकल ये हो गया कि जैसे गिटहब के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना आपका एक ओपन सोर्स में कितना कंट्रीब्यूशन किया हो, लाइक गिटहब इज अ न्यू रेज्यूमे फॉर देयर, राइट? मतलब ना उनके यार, आई डोंट नो, ऐसा लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं कहता ऐसा. ऐसा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं. ऐसा नहीं है तो बहुत दिक्कत है, ऐसा भी नहीं है. अच्छा अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है. क्योंकि अगर वो नहीं है तो उसके अलावा बहुत कुछ है ना. उसके अलावा आपकी गिटअप प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी कंसिस्टेंसी है, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर ओन प्रोजेक्ट्स है. जब कुछ अच्छा बनाओगे उसको पोस्ट करोगे एंड इफ़ यू आस्क पीपल टू गिव इट अ स्टार, तो लोग करते हैं वैसा. सो यू विल बी हैविंग स्टार्स ऑन योर रिपोजिटरी, दैट गिव्स इफेक्ट, ऑलराइट। फर्क पड़ता है. ठीक तो है. हाँ हाँ, लेट्स अभी yes. थोड़ी देर के लिए लेट्स टॉक टू दीपा यन. Yes, उनके sure, पास सर वही बोल रहा था हाँ, कि तो मेरे को मुझे तो इतना कुछ आपको आता भी गाइड नहीं, करना था. मुझे ठीक है, कॉलेज के बाद जॉब करने के लिए ठीक है रिपन. तो क्या करना चाहिए? कॉलेज के बाद जॉब ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अभी से यू स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड ऑन योर प्रोजेक्ट्स. क्योंकि आपके पास आई थिंक फुल टाइम जॉब अभी है नहीं सिर्फ का पढ़ाई भी करने के लिए. तो कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स आपके होंगे, लाइक जो मेजर प्रोजेक्ट या जो कि फाइनल होगा प्रोजेक्ट, ट्राई टू मेक समथिंग गुड. और समथिंग गुड बनाने के लिए यू नीड टू हैव सम गुड टूल्स. एंड आई डोंट थिंक अभी जो आपके बास्केट में है उससे फैंसी तो बहुत कुछ बन सकता है, बट कुछ प्रोडक्टिव या अच्छा इन द सेंस लाइक वेल स्केलेबल, प्रोडक्शन रेडी, सिक्योर, वेल मेंटेन्ड ऐप. तो आई डोंट थिंक अभी ये टूल से बनेगा, बिकॉज यू नीड सम एटलीस्ट बैक एंड, देन डेटाबेस, देन सिक्योरिटी, देन डिप्लॉयमेंट, ये सब चाहिए. तो आई कैन रेकमेंड टू लर्न अगेन वो जो मैंने अभिषेक को बोला, इधर गो विद गोलैंग और गो विद जावा और कॉटलिन, बिकॉज दे आर इन डिमांड. सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग कम ही हैं फिलहाल. तो देर आर जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स लाइक अराउंड द वर्ल्ड. जावा में बहुत ज़्यादा जॉब्स अभी भी हैं. ठीक है, और गोलैंग में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, लाइक इंक्रीज हो रही हैं. सो बैक एंड सीखना पड़ेगा. अगर आपको ऑलरेडी रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट आता है, देन rather than going to the next is you should learn a separate back end tech stack. ठीक है, और फिर Next.js सीखने के लिए you can still learn Next.js but for the front end development only, not the back end side. एक अच्छी जॉब के लिए और एक क्विक जल्दी जॉब चाहिए तो you can go with the Merge stack. उसमें भी you can create some good project, like good mean good project. For an example, अगर YouTube पे जाके if you try to search something की like real time collaboration app, तो most of the tutorials are using a third party library or a service to provide that collaboration. That does not clone. You cannot call it a clone. अगर मैं लिखूँ कि मैंने Google Docs clone बनाया है and for that real time collaboration
if I'm using a third party library or service but not building it from the scratch, then I should not call it a clone. ठीक है, क्योंकि क्योंकि गूगल डॉक्स का मेन फंडा बहुत उसकी जो हाईलाइटेड या उसकी जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट इज़ रियल टाइम कोलैबोरेशन, और वो आपको फ्रॉम स्क्रैच से ही बनाना पड़ेगा टू शोकेस योरसेल्फ एज ए गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो ऐसा कुछ ट्राई टू बिल्ड इट इफ़ यू वांट टू स्टिक विद योर रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस एंड HTML CSS. एटलीस्ट एक सर मैंने सोचा था गो अहेड. सर मैंने सोचा था एक नेटफ्लिक्स जैसा कुछ बना, उसमें मतलब वीडियो कॉल इंटीग्रेशन कुछ ऐसा कुछ बना, नहीं तो ई कॉमर्स का आपसे पेमेंट इंटीग्रेशन. बहुत ईजी है. वेब आर्टिस्ट से होता है, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भरे पड़े हैं. समथिंग एल्स जब भी लगे ना कि क्या बनाऊं, तो जस्ट जो आपको आइडिया आ रहा है उसको देख लो इंटरनेट. अगर वो है देन डोंट डू इट. सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन ऐसा कुछ करो. डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए ना कुछ जिसको बनाने में अच्छा. थोड़ा वक्त लगे और अच्छा हो एटलीस्ट. क्योंकि जब कंपनी के लिए अप्लाई करोगे और उनको आपने ही बनाया वेब आर्टिस्ट, 10 लोग और नहीं हो तो फिर 10 में से फिर वो आई थिंक जिसने पहले किया वो, या फिर रैंडमली लाइक मैं क्यों ही चूज़ करूँ आपको. अगर 100 से 100 ने सब ने सेम काम किया है तो मैं किसी भी कर लूँ, क्या फर्क पड़ता है. आई मीन ऑन द टेक बेसिस आई नो लाइक देयर आर वेरियस फैक्टर व्हेन वी हायर समबडी, बट टेक का मेन होता है बेसिकली. इफ यू इंजीनियर एंड इफ यू आर नॉट लाइक गेटिंग हायर्ड फॉर लाइक मैनेजमेंट लेवल थिंग, विच इज़ नॉट द केस आपके केस में अभी तक, बिकॉज यू विल बी अ फ्रेशर. प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाओ एंड प्लीज इंक्रीज योर टेक स्टैक. अभी बहुत कम है. ठीक है, HTML CSS काउंट ही मत करो, जस्ट काउंट योर रिएक्ट, दैट्स इट. सर और एक बात पूछो, आपने बोला कि गोलांग करने के लिए, तो मैं गोलांग में फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ लिख पाऊंगा? गोलैंग इज जस्ट अ बैक एंड डेवलपमेंट थिंग. उसमें आप सर्वर लिख सकते हो, बैक एंड कर सकते हो, नॉट फ्रंट एंड. फ्रंट एंड ठीक है, देयर आर सम UI लाइब्रेरी which help you to build UI, but no, that's not something. तो मैं दो अगर अलग अलग लैंग्वेज में करूंगा कनेक्ट कर पाऊंगा? नहीं, एक तो आपको आती है ना React.js, एक तो आप सीख रहे हो. हाँ हाँ हाँ. यहाँ तो वो है फ्रंट एंड. तो यहाँ आपने सीखा गोलैंग, तो गोलैंग में आपने बनाया HTTP सर्वर, देन यू कैन कॉल दोज API विद योर फ्रंट एंड. तो आपको सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड सीखना है. फ्रंट एंड तो है ही ऑलरेडी आपके पास. मुझे लग रहा था कि पहले मंस्टैक नेक्स्ट ये सब कर लेते हैं. Monstack like MongoDB, React, Node.js एक्सप्रेस और एक्सप्रेस Express. यस. स्टिल जो मैंने अभिषेक को बोला वो सेम ही चीज आई कैन रिपीट. आई डोंट थिंक आई कैन से एंड लाइक उसके Okay, sir. अलावा कुछ भी, क्योंकि वही बात है कि सब सीख रहे हैं तो आप भी सीख लो. तो बस यही होगा, सब सीखे तो अब सबको रैंडमली जॉब मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है. वही केस हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आता हो बट जॉब उसको मिल जाए जो पहले आया था, क्योंकि सबने सीखा हुआ है. हाँ. तो आपको कंपनी यूनिकली ढूंढ पाए या आपको एक्सक्लूसिवली पिक कर पाए, उसके लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा. अलग करना ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप मैं एक चीज़ बता सकता हूँ. एक अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया मेरे को रिसेंटली आया था एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, बट एज ए Udemy कोर्स, नॉट एज ए लाइक YouTube वीडियो. आइडिया है कि यू कैन क्रिएट अ कंप्लीट प्रोडक्शन ग्रेड ऑथेंटिकेशन फ्लो. ऑथेंटिकेशन फायरबेस को यूज़ करके आप यूज़ करो Next.js, आप यूज़ करो फायरबेस एंड यू क्रिएट अ कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन जहाँ पे साइन अप, लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड रीसेट, फिर वो टोकन बेस्ड, फिर वो सेशन बेस्ड, फिर वो सेशन कुकीज, फिर उसमें होते हैं लाइक कस्टम हेडर्स, फिर उसमें होता है कस्टम क्लेम्स. तो ये सब यूज़ करके इफ़ यू कैन बिल्ड ए कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम देन इट्स अ गुड प्रोजेक्ट. Nobody can ignore सर it. एज अ फ्रेशर इतना मैं कुछ कर पाऊंगा क्या? हाँ, तो सब फ्रेशर ही होते हैं. पहले एक्सपीरियंस कौन होता है? सब फ्रेशर ही होते हैं. मैं भी पहले फ्रेशर ही था. आजकल तो क्या नहीं है आपके पास. यूट्यूब, आपके गूगल, आपके पास LLM है. सो जस्ट फील फ्री टू यूज LLM. नो बडी केयर्स कि आपने LLM यूज किया कि नहीं किया. आपको काम आता है, आपने काम किया, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी. LLM यूज करो, सीखो उससे, LLM से. कि कोड याद थोड़ी करना है, लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए. कोड याद होना नहीं होना डजंट मैटर एट ऑल. क्या मैंने आज तक जितना कोड लिखा है मेरे को सब याद है? नहीं, ऑफकोर्स किसी को भी नहीं होगा. और करना क्यों है?
ब्रेन याद करने के लिए थोड़ी है, ब्रेन लॉजिक बिल्डिंग के लिए है। अगर आपके पास एलएलएम है और उसके बाद भी आप इफ यू आर नॉट एबल टू मेक प्रोजेक्ट्स, तो वो आपकी फॉल्ट है। भैया मेरा एक गोल था कि मुझे एक रिमोट जॉब चाहिए था, तो ऐसा फ्रेशर को रिमोट जॉब के लिए क्या क्या करना चाहिए? हर जॉब के लिए, रिमोट जॉब, ऑनलाइन, ऑन साइट, ऑफ साइट, हर जॉब के लिए पहला स्टेप है इंटरव्यू। और उस पहले इस स्टेप के लिए प्रेपरेशन है योर प्रोजेक्ट्स, योर वर्क। क्योंकि अगर मैं आपको एज ए कंपनी हायर करूँ तो क्यों करूँ, आपको क्या आता है, लाइक व्हाट यू कैन डू फॉर मी। तो ये पहला स्टेप है। कुछ भी जॉब हो रिमोट नहीं हो, सबके लिए आपको पढ़ना तो फर्स्ट स्टेप है, काम करना फर्स्ट स्टेप। जब जब भी सब कर लोगे, लाइक यू आर रेडी विद योर प्रोजेक्ट्स, यू आर रेडी विद योर प्रेपरेशन, यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू, तब बात होती है रिमोट करनी है कि ऑन साइट करनी है। उससे पहले तो डजंट मेक सेंस। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि प्रेपरेशन ही रिमोट जॉब, क्योंकि लाइक रिमोट जॉब मतलब क्या, बस आप ऑफिस तो नहीं जा रहे हो, काम तो सेम ही है, हाँ कुछ अलग नहीं है। आई नो लाइक यूट्यूब पे होता है लाइक अलग की रिमोट, नथिंग, बस ऑफिस ही तो नहीं जा रहे हो, काम तो सेम ही है ना। देयर इज नो प्रिपरेशन लाइक रिमोट जॉब प्रेपरेशन, कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं। लाइक मिसलीडिंग वीडियोज हैं, दैट्स ऑल। सर, वो आपने जो प्रोजेक्ट का बोला था, मुझे और एक आइडिया आया था। मैंने हरकित भैया के पोस्ट से देखा था, riverside.fm का क्लोन बनाना। किसका? वो एक अच्छा, riverside.fm, क्या होता है मुझे बता, टेल मी। मतलब उससे यूट्यूब, मतलब कोई वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं एकदम अच्छी क्वालिटी, अगर नेट भी स्लो हो तो। वो एक जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं वो यूज करते हैं, एडिट वेडिट बहुत कुछ होता है। आई डोंट नो, ओके, होता होगा, ठीक है, अच्छा है तो बनाओ। अरे मैं बताता हूँ तुमको, तुम लाइक यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इफ यू रियली वांट टू गेट हायर्ड ना। तो सिंपल से जैसे कि तुमने बात स्टार्ट की थी कि वीडियो इंटीग्रेशन लाइक वेब आरटीसी से, मे बी लाइव कॉलिंग अगर है तो ठीक है, क्रिएट दैट प्रोजेक्ट एंड स्केल इट अप टू 1 मिलियन। आई कैन गारंटी यू नो बडी कैन इग्नोर योर वर्क। नेक्स्ट यूज करो, जो मर्जी यूज करो, आई डोंट केयर, बनाओ इसको, स्केल इट अप टू 1 मिलियन। आपके सर्वर, जो आपका लोकल सर्वर पे, ट्राई टू क्रिएट 1 मिलियन क्लाइंट्स जिनका आप लाइव स्ट्रीम कर पाओ एफिशिएंटली। मे बी अगर आपका हार्डवेयर लिमिटेशन ऑफकोर्स जो कि होता है, तो डू इट टू 500 के, बट आपकी हार्डवेयर लिमिट खत्म हो जाए वहाँ तक तो स्केल करो। आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना। ये दिस वन सिंगल प्रोजेक्ट कैन लैंड यू जॉब, गारंटी, अच्छा, गारंटी। अब आपने बनाया कुछ ऐसा है जो कि कंप्लीटली इसके क्योंकि स्केलेबल नहीं है, घुमा फिरा के सब कुछ, एट द एंड ऑफ द डे जस्ट क्रड एप्लीकेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, डेटा क्रिएट करना, रीड करना, दैट्स इट। स्केलेबिलिटी जैसी आती है, चीज़ें सब खराब हो जाती हैं। डू इट, मत बनाओ कुछ भी, कुछ मत बनाओ, किसी का क्लोन मत बनाओ, भाड़ में आ गए सारे क्लोन। जस्ट इंटीग्रेट योर वेब आरटीसी और वट एवर यू वांट टू इंटीग्रेट, स्केल इट अप टू 1 मिलियन फ्रॉम स्क्रैच, नॉट विद द थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। क्योंकि अगर आपने लाइब्रेरी यूज़ करी, फिर आपने कुछ नहीं किया, आपने किसी और का लिखा हुआ कोड यूज़ किया है, इंपोर्ट करा है उसको, आपने खुद थोड़ी कुछ किया है। इसलिए आपका रेज्यूमे इतना इंप्रेसिव नहीं होता, क्योंकि आपने अगर आपने नोशन क्लोन बनाया यूट्यूब से या कुछ भी बनाया, तो सब कुछ तो इम्पोर्टेड है, खुद ने क्या लिखा है, यूज तो किया है। देन यू आर नॉट एन इंजीनियर, देन यू आर लाइक अ डेवलपर, जो कि चीज़ें, जिसको एपीआईज यूज़ करनी आती है, लिखनी नहीं आती है। बट व्हाट इफ एक बहुत अच्छी कंपनी जहाँ पे वो लोग खुद एपीआई बनाते हैं, एक्सपोज करते हैं फॉर अदर्स, वहाँ लिखनी आनी चाहिए। एंड ऑफ द स्टोरी, प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, दैट्स इट। कम होने चाहिए बट अच्छे होने चाहिए। 10 बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, एक बनाओ, दैट शुड बी रियली वेल। और अभी अगर आज जाके पूरा यूट्यूब कहीं भी छानोगे, कहीं आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल ही नहीं सकता, किसी भी कोर्स में नहीं मिल सकता, जहाँ पे सिंपल वेब आरटीसी इंटीग्रेशन 1 मिलियन पे स्केल किसी ने कराओ। बी द फर्स्ट, बनाओ इसको। तो सब लोग अभी बोल रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट मतलब मंच तक सैचुरेट हो चुका है, एआई एमएल कर लो, डेवऑप्स कर लो, तो इनकी बातें सुनना नहीं चाहिए। सब कुछ कर लो फिर। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सब कुछ करने से कुछ नहीं होता। पहले ईमेल पहले मैं यूट्यूबर को फॉलो करता था, वो लोग बोलते थे कि अपना कॉलेज डी से कर लो, डी से कर लो, थोड़ा डी से कर ले थोड़ा बहुत, फिर बोल रहे हैं वेब डेवलपमेंट। अभी सुना वेब एक डेवलपमेंट बात सैचुरेट बताता हो हूँ, चुका है। डीएसए पता है आपको कब करना चाहिए? मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। डीएसए आपको बच्चे तब करना चाहिए जब
आप लिटरली यू आर एमिंग अ वेरी नाइस और बिग एंटरप्राइज लेवल कंपनी, क्योंकि स्मॉल टू मिड साइज कंपनीज में ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती टू सॉल्व जहाँ पे आप डे से यूज़ करो. फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में अगर आपने पढ़ा है BFS, बैच फर्स्ट सर्च, और बेस्ट फर्स्ट। DFS पढ़ा है, स्मॉल टू मिड साइज कंपनी में कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा होगा. इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होगा लिंक्डइन के अंदर व्हेन लिंक्डइन ट्राई टू फाइंड कनेक्शन अमंग मिलियंस, वहाँ पे यूज होता है बाय डायरेक्शनल BFS, एडवांस लेवल BFS. तो पता होना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए. यू शुड लर्न DSA टू मेक योर लॉजिक बिल्डिंग, टू लर्न ज़्यादा ज़्यादा लॉजिक बनाना, नॉट टू जॉब. क्योंकि जॉब जेस तो नहीं मिलती अनटिल यू आर नॉट एमिंग द बिग कंपनीज. और बिग कंपनी को एम करने के लिए या तो आपको अच्छे कॉलेज में होना पड़ेगा या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा. एज ए फ्रेशर तो आप डायरेक्टली अप्लाई लाइक कर ही नहीं सकते ना, कैसे करोगे? तो मैं तो फ्रॉम बात खत्म हो गई, कॉलेज। तो बात खत्म हो गई. द नाउ फोकस स्मॉल टू मिड साइज. वहाँ पे आपको चाहिए Okay. प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स, ताकि आप जल्दी से भीड़ से अलग हटके अपनी जॉब ले लो. एनीवेज एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि ट्राई टू मेक प्रोजेक्ट्स. और मैंने जो आपको आइडिया दिया है अभी, इफ यू कैन डू इट 100 के भी चलेगा, बिकॉज आई नो कि इवन 100 के भी करने के लिए लाइक 1 लाख कनेक्शंस, कॉन्करेंट कनेक्शंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, जोर लगेगा विद WebRTC. ट्राई टू डू इट इफ यू कैन डू इट. फिर टू यूज़ LLM, कोई शर्म की बात नहीं यूज़ करना, वो बनाया गया है क्योंकि उसको लोग यूज़ करें. और यू आर इंजीनियर नॉट अ डेवलपर, सो इंजीनियर काम ब्रेन यूज़ करना टू क्रिएट लॉजिक बिल्डिंग, टू असिस्ट योर LLM टू डू समथिंग एंड देन debug it, correct it, not to just like learn the memorize a code. So feel free to use it. सर ये पूछना था कि मतलब अब मैं डेवलपमेंट करी मतलब DSA करा हुआ है, तो आई हैव सोल्ड ओवर 1500 1600. मैंने बताया कि 1500-1600 लीड कोड क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करा हुआ ठीक है. है. तो बट अभी उसको छोड़ दूं लाइक कि बिल्कुल ही लाइक कि मतलब सीधे डेवलपमेंट में आ जाऊं, ये थोड़ा बहुत करते रहूं साथ साथ में, इट वुड हेल्प इन. यार आपने ठीक है चलो माना आपने 1500 में सॉल्व करें, दैट इज़ अप्रिशिएटेड. ठीक है, आपने उससे तो उसका मेरे हिसाब से एसेंस यही होना चाहिए कि आपको लॉजिक बिल्डिंग क्रिएट हुई है तो बहुत अच्छी बात है. उसके अलावा आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू है, क्योंकि 2-3 हज़ार भी सॉल्व करो तो भी अगर लॉजिक बिल्डिंग हो रही है तो इज़ वेरी गुड. अगर आपको लाइक वॉट एवर आपको लगे ये मुझे टेक्स्ट सबसे अच्छे से आता है, उस पर भी मैं आपको अगर बोलूँ जस्ट क्रिएट लाइक ऑथेंटिकेशन API जो कि 1 बिलियन रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाए विद सम लाइक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. तो कैन यू बिल्ड इट और एटलीस्ट डू यू नो अबाउट इट? तो यहाँ चीज़ें फ़र्क पड़ती है, क्योंकि 1500 सॉल्व करने का मतलब मुझे इतना कुछ पता होना चाहिए, या तो दोनों पता हो या फिर थोड़ा इसको डाउनग्रेड करके फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एट द एंड तो आपने काम ही करना है. Yes, sir. Yeah. So there was a startup in our company, मतलब in our college कि आया था वो, and it was Dubai based, Data Insights नाम था उसका, UK based startup था, मतलब UK में उनकी ब्रांच थी, and it was a startup, right? तो पहला उनका इंटरव्यू हुआ था कि प्रोजेक्ट्स वगैरह में हुआ था, and they shortlisted me, and after that they will have a question of graph. स्टार्टअप था, ग्राफ का क्वेश्चन पूछा, and I passed that interview. लास्ट था उनका CTO के साथ हुआ, मतलब वो मेरा राउंड हुआ था, and he directly asked कि हाँ भाई लाइक HLD LLD के क्वेश्चन पूछ ली उसने कि फॉर एग्जांपल तेरे को मैंने समझ ले यहाँ पे धाम लगी हुई है, कहीं पे 20 या 30 धाम लगी हुई है, तो तू बता कैसे मेरे को लाइक सबसे जो पहले धाम हुई है, जो सबसे पहले धाम हुई है, सबसे पहले लगी हुई है और सबसे बड़ी है और जो सबसे पास में है, उसको शॉर्टलिस्ट करके मेरे को बता. तो मैंने तो लाइक सीधे डेटा स्ट्रक्चर आएगा दिमाग में, उनकी HLD LLD पढ़ा नहीं है, एंड मैंने बता दिया कि हाँ मतलब मैंने हीप का लगा दिया एंड सोर्ट कर दिया मैंने उस वे में कि डिस्टेंस जितना पास में होगा उस वे में सोर्ट करके आगे दिया. बोलता ठीक है 20 या 30 होके बता, मैं को 1 लाख देता हूँ, 1 लाख लाइक धाम लगी है तो 1 लाख को सोर्ट करने बैठ जाएगा, और कितने बंदे होंगे सबके लिए सोर्ट करने बैठा रहेगा. अगेन बात घूम फिर के स्किल बिट पे आती है ना. वही तो इट्स काइंड ऑफ की स्केलेबिलिटी पे तो है. अब मेरे को लाइक आपने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब कैसे करना है, स्केलेबल करना अपने सर्वर को, तो हमको LLD और HLD सीखने की जरूरत है इसके लिए कि इलास्टिक सर्च कैसे काम करती है, इलास्टिक कैशे, और ये यार ये सच में ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी में स्पेसिफिकली वो यूज होता हो, एंड दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग.
तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत जनरली कि आपको पता होना ही चाहिए, है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यू कैन गिव दैट पर्सन ए जनरल आइडिया कि ठीक है जो आप कह रहे हो मे बी मैं उस पर्टिकुलर टैग से इसको नहीं कर सकता, बट आई हैव सम अदर एफिशिएंट टैग और आइडिया विच कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपकी कंपनी में आऊँगा तो मे बी मैं अब तक जावा से हूँ, आप काम करते हो सी में, तो ठीक है मैं सी सीख लूँगा, बट द पॉइंट इज कि मुझे इन जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। मे बी मैं इससे कर सकता बट मैं इससे कर सकता हूँ। सो इफ दैट वे यू कैन आंसर तो ठीक है। तो मतलब अभी मेरे को HLD या LLD सीखने की जरूरत है, मतलब विद बिफोर क्रिएटिंग स्केलेबल सर्वर्स, लाइक इफ आई टॉक अबाउट जैसे AWS हो गया, AWS का आर्किटेक्चर सीखने की जरूरत है, या सर्वर के अंदर कैसे काम करना है, CDN कैसे काम करता है? आई डोंट थिंक सो। सीखो पहले, अपने प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि यार एंटरप्राइज लेवल कंपनी में डेवऑप्स की टीम होती है। Alright. यू डोंट हैव टू टच ऑल दिस थिंग। ठीक है, पता होना चाहिए थ्योरेटिकल लेवल पे, तो पता करने में कितना टाइम लगेगा, 1 वीक लगेगा, मिसली एक दिन लगेगा, पढ़ लो, बट डू राइट कोड फ्रॉम योर सेल्फ एज ए बैकएंड इंजीनियर, क्योंकि अच्छी कंपनी में बैकएंड इंजीनियर होएगा, फिर डेवऑप्स होएगा, तो यू कैन कम्युनिकेट, you should be knowing things in theory, so you can communicate कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, आप समझ पाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे डेवऑप्स इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता अगर कोड ही घटिया है तो। सो ठीक है, चलिए ले आप सीख सकते हो, सीखो, बट फर्स्ट स्टेप ये है कि यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड देन लर्न हाउ टू बिल्ड स्केलेबल थिंग्स, डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग्स, माइक्रो सर्विसेज, Yes, sir. ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है माइक्रो सर्विस में, सेशन कैसे, लाइक हाउ यू चेक, आपके लाइक 100 सर्विसेज हैं, एक देयर इज अ बिग प्रोजेक्ट, यहाँ 100 सर्विसेज है, तो 100 की 100 में से लाइक 50 में और आ ही रहता है, सो हाउ यू विल मैनेज दैट। Okay. तो दैट्स व्हाई, लाइक ठीक है, आपको जो उसने पूछा नहीं है तो उन्होंने बोला ठीक है यार मुझे ये नहीं है, बट मैंने ये कर रखा है, वो तो स्किल है, या वो स्किल नहीं Yes. है, वो भी है। स्किल है, दैट्स इट। लाइक माइक्रो सर्विस पे मेरे को ज्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक वगैरह जो भी होते हैं हमारे माइक्रोसर्विस नोट। बहुत ट्रेंड में, लाइक डिमांड में भी, नॉट ट्रेंड, डिमांड में भी, क्योंकि हर कंपनी को ग्रो करना और ग्रो कर दी है, सो लाइक एनी कंपनी विच इज ग्रोइंग ना वो माइक्रो सर्विस पे जाती है, स्पेशली हेल्थ टेक और फिनटेक, क्योंकि मैं फिनटेक से हूँ तो आई कैन टेल अबाउट फिनटेक। ओके। एंड अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बताया कि ऐसी चीजें करो जो लाइक यूट्यूब में नहीं है, या ठीक है, डेफिनेटली। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, लाइक हाई लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव्स उसके लिए, कि मतलब अगर मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में भी समझ नहीं आ रहा, सो लाइक क्योंकि अब मैं गोलैंग पे जाऊंगा, मेरे को इतना पता है कि मेरे आसपास में बंदे काफी कम कर रहे होंगे, लाइक देयर वोंट बी एनी हेल्प मेरे को वहां से मिलेगी, तो गो विद LLM। ओके। मैं बताता हूँ, थोड़े पैसे खर्च कर पाओ तो अच्छी बात है, बीच इज और ना करना वो तो फ्री वर्जन होता है। देयर इज लाइक चैट जीपीटी के अलावा देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एंथ्रोपिक का क्लॉड AI, ओके। कोडिंग के लिए, लाइक टू लर्न कोडिंग फंडामेंटल्स, टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, द बेस्ट LLMs आउट देयर इज क्लॉड AI। चैट जीपीटी इज मेरी नजर, लाइक मेरे अकॉर्डिंग इट्स नॉट अ गुड, लाइक नॉट अ वेरी वेल एफिशिएंट और गुड AI LLM to do coding. It's a dumb kind, basically like mainly dumb है, so I like Claude AI, so very good, so उसको Claude AI? या Claude AI, ओके। तो ये एंथ्रोपिक इसकी पेरेंट कंपनी, तो इसलिए इट्स रियली गुड। उसको आप इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन कि आई वांट टू बिल्ड दिस एंड डू दिस, सो इट विल हेल्प यू। ओके, मैं एक चैट में बस इस कॉल को खत्म करने से पहले एक चैट में एक मैसेज लिख रहा हूँ विच यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट जब भी आप कुछ भी सीखो LLM के साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर लर्निंग गोलैंग, ठीक है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद एक्ट एज गोलैंग एक्सपर्ट विद gRPC, ठीक है, ये लिखा। इस लाइन के बाद यू स्टार्ट की आई वांट टू क्रिएट अ gRPC server which can handle 10K concurrent gRPC client request as a bi-directional stream, and can send test data to each other, whatever it is, ठीक है। तो इफ़ यू डू इट दिस वे तो दिस विल हेल्प यू। सो ये लाइन बहुत ज़रूरी, बिकॉज ऐसे करने से कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाता है, बाउंड्रीज हो जाती हैं कि दैट नाउ
for that particular chat, that AI agent will be like acting as a Golang expert. So ये prompting करना एक तरीका है, and prompt engineering, like not engineering but yeah, prompt करना आना चाहिए because it's difficult. So अगर आप ऐसे prompt करते हो तो it will help you a lot. This line is very important. Okay, sir. Let me copy it. Anyways, so this was the session and I think मैंने तो सोचा 30 मिनट था, but ये ज़्यादा हो गया, is fine. I was free. Okay, sir. So yeah, अगर इसके अलावा कोई question हो, you can drop it on LinkedIn. I will be trying to Thanks a lot, sir. Thanks a lot. अभी के लिए तो यही था.